So she has asked the question ki how we should live in the present so that old age is rewarding and we can merge into divinity during old age. So, question is, a means is decided only when the goal is clear. Supposing you go on the aircraft, outside you ask, give me a ticket. You will ask where you want to go. You cannot say any ticket, whatever is free. ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कोई भी फ्लाइट जो फ्री है दे दीजिए. He will think there's a mental problem then. So, first of all, the goal of our life should be clear. And the goal is to be free from all sorrows forever. To be free from all fears forever. We all want to be free, but we got bound. And what work and people we went to get freedom, they bound us more. We went to certain people, got close to certain work, so that I feel I'll be better, I'll be happier. And we found I was happier earlier actually. You will know this, you are not saying it, but you will know that. तो हिंदी में बोलते हैं 24-26 होने चले दूबे हो गए. एक 24 जी थे, इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकते. 4 went to became 6, he became 2. 24-26 दुबे एक्चुअली सरनेम. यूपी वगैरह में एक सरनेम मथुरा के पास 24 सुना होगा, दुबे 26. 24-26 होने चले दुबे हो गए. You went out for more freedom, more joy. And what I discovered, that earlier that joy and freedom that I had, that also is no lesser. Life is not meant to lose our strength, our freedom. ऐसा आप कुछ मत करिए कि आपकी स्वतंत्रता चली जाए. You are here. You know why you are here? Because you know whenever I want I can go out. Doors are open outside. And if you know that I've come here and the doors will be closed forever, or I don't know when they will open. It can be morning, it can be tomorrow evening. ये तो hijacking हो जाएगी फिर. ये तो फंस गए. एक शब्द है फंसना, पता है ना फंसना? हाँ? मतलब कि आप कुछ काम करें, you are unhappy but you can't leave at will. Where you're living at will is not that is called I got trapped there. हम तो फंस गए उनके साथ. आप छोड़ सकते हैं कोई चीज को, उसको फंसना नहीं बोलते. I can leave whenever I want. Then you are not trapped. तब आप फंसे नहीं हैं. तो लाइफ इसके लिए है कि हम कैसे सब फंसना छोड़ दें. How I can be free from all action or people, all situations, living or not living. ये क्या कि हम किसी चीज के साथ परेशान हो गए और हम I can't do whatever I want to do. So first of all I decide what really, that is called moksha. Moksha is the emotional freedom forever. Uninterrupted freedom. Feeling of limitlessness. हमें लगता नहीं कि हमें कुछ चाहिए. जैसे आपको ये शरीर नहीं चाहिए क्योंकि है ही हम ये, अभी क्या चाहिए? हम चाहते उसको है जो हमारे पास ना हो. वो फाइनल लक्ष्य है. और आपको 60-70 इयर्स की लाइफ दिया गया है. चलिए 80 कर लेते हैं अगर आपको संकोच. क्या करा जाए? टाइम बहुत नहीं है. You are not
time is not on your side right now. If you have crossed half, if you have crossed 40, 50, then you are running in reserve now. And if you have crossed 60, 70, तब तो बहुत ही कम टाइम. So therefore, earlier days, when they were going for marriage, so they had a guru. So couple used to go to the teacher, guru. So guru used to say, okay, हम आपको 30 साल का समय दे रहे हैं, आप इसी आश्रम में फिर आइएगा when you are 55, 60. और आपको जो कुछ करना हो, अच्छा कपड़ा पहनना हो, अच्छा खाना खाना हो, लाइफ जितना भी इंजॉय करना हो, आप करके आना. लेट मी सी व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट ऑल दिस वर्ल्ड. और उसके पहले उसको बता देते कि दैट इज द फाइनल गोल ऑफ द लाइफ. So marriage was an institution. An institution is that in which you increase your qualification. Like MBA है, MBBS है. You become doctor, graduate, postgraduate. So this institution till 50 is meant to develop one qualification is called MD, Master of Dispassion. MD, MDis और MM और मास्टर ऑफ डिवोशन. इतना आपको टाइम दिया गया. इट इज अ 25-30 year course. It's a state of mind. So Vanaprasth is a state of mind. And the state of mind needs an infrastructure. क्योंकि हम नहीं चाहते, शास्त्र नहीं चाहते कि I should die sad and I should be born again sad. फिर वही जीवन जिएगा. Again you are reborn. Again you will have to go to the school now. सबसे बड़ा चैलेंज ये है, क्योंकि आप में पढ़ने की वासना है. So again you will go to the school, and school studies are much difficult now than what was at your time. वो दिन गए. सोच लीजिएगा आप. हम लोग कंप्यूटर ग्रेजुएशन में मिला, वो भी बड़ा वाला कंप्यूटर एक हुआ करता था. लैपटॉप तो नहीं, बस लैप अलग था, टॉप अलग था. लेकिन अब तो क्लास 1 वालों को भी कंप्यूटर में काम करना, उनको होमवर्क भी उसी में मिलता है. ऐसा है ना? अब बताइए. हाँ, आईपैड वगैरह क्या क्या है. बहुत अच्छा नहीं है कि one has to be reborn and again start. They want that you should be free from this cage called body. उड़ जाएगा पंछी अकेला रे. एक केज है ये. One situation is a cage. You can't run away from that if in view. There is no lady who has not thought of running away from the house. हाँ भाई, कोई बता नहीं रहा है. ऐसा दिमाग में है तो भाग ही जाए यहाँ से. And there is no man who has not thought of running away from the office. इस जॉब को छोड़ दें हमेशा के. लेकिन आप भाग नहीं सकते, वो एक केज है. एक ही तरीका है कि हमारी इच्छा खत्म हो जाए, या हमारी इच्छा हमें लगे ना कि आई नीड एनीथिंग इन माई लाइफ. आई हैव एवरीथिंग, ऑल द जॉय आई हैव, ऑल द फुलफिलमेंट आई हैव. आई हैव नो फियर फॉर एनीथिंग. देखो कितने महात्मा की फोटो यहाँ लगी है. हम इन्हीं का नाम ले रहे तो स्वामी नित्यानंद जी हैं. हियर फर्स्ट वन एंड हियर ऑल्सो नित्यानंद जी. देखिए ये निसर्गदत्त हैं, वो नित्यानंद जी. वो नीम करोली बाबा है. हाँ, नीम करोली बाबा. और तो सब जानते होंगे आप.
आई वॉज टेकिंग हिज नेम देयर फॉर, हम उनका नाम कर लिए थे शायद, उसी स्टेट में थे। हमारे पास 50 काम है, 50 जगह सोचना है, 50 जगह जाना है। एक काम करो 10 काम और निकल आता उससे, 10 करो फिर और निकल आता। There is no end. Last day of life also there is no end. So scripture want that you should be a king inside. Gurudev asked somebody, what is your name? He said, Raja Ram. Gurudev said, be Raja inside, Ram outside. So my point is, this is, you should know the complete picture. Then only you will know the means. You should not squander away the time, because this you will not get it back. Pratyayanti gatahana divasaha. What time has gone will not come back to you. इसलिए हमारे अंदर इमोशनल फ्रीडम, नंबर 2 नॉलेज ऑफ द सेल्फ, एंड नंबर 3 डिवोशन ऑफ द गॉड, टू द गॉड, 3 चीज कंपल्सरी होना। अगर नहीं है तो यू आर एट बिग लॉस। नाउ आई हैव टू स्टार्ट वेयर आई एम। What has happened has happened. Let's start wherever I am. And how do I start? First of all, understand. And understanding the meaning of what was my role. Did I play a role or I became a bedroll? Because in bread roll somebody is eating you. You are crushed. And in role, after playing the role, you take away the role and you are free. एक ड्रामा हो रहा था इंडिया में, एक आदमी राणा प्रताप बना था। वो भूल, तो जैसे खत्म हुआ ड्रामा तो ड्रामा वाले ने कहा ड्रेस निकालो भाई, मुकुट निकालो। तो इसने तलवार मारा उसको एक झा। बोले राणा प्रताप से मुकुट मांगते, शर्म नहीं आती? फिर वो बाहर गया, ऐसे ऐसे करते सड़क पे गया। एक बस आ रही थी, रुका उसने, तो कंडक्टर, हाँ कहाँ जाना है? मारा उसको एक दूसरा, वो तलवार से मारा। कहा तुम राणा प्रताप से पूछते हो कहाँ जाना है? अब कोई कुछ बोले नहीं, कहीं मार ना दे भाई। तो जंगल में ले गए उस बस को। पूछा क्या आ गया? तो कंडक्टर ने अपनी सरकास्टिक तरह से बोला कि तौड़ आगड़ आ गया जहां बना। उसको जंगल में उतार दिया। माता पिता ये सब रोल था, एंड रोल शुड बी ओवर। आपने बच्चे को सेटल कर दिया, अब उसकी जिम्मेदारी नहीं हमारी। किसी के लाइफ में क्रच नहीं बनना चाहिए। डोंट मेक अ क्रच, यू मेक अ क्रच आउट ऑफ योर सेल्फ। नाइदर यू बिकम अ क्रच, नाइदर मेक हिम अ क्रच। पेरेंट्स से सबसे बड़ी गलती होती है, दे बिकम अ क्रच। दिन रात जब आप ज्यादा किसी को सपोर्ट करेंगे तो वो खुद नहीं खड़ा हो पाएगा। ही इज 35, ही इज 40, बट स्टिल आई एम आफ्टर हिम। They feel my daddy, mummy are after me. Nobody should feel that I don't need you. But when you are after somebody who doesn't, then they feel that I don't need him, but he is needing me. They are so attached. You should say when you are 25, maximum 30, you have to stand on your own feet. Don't expect anything. You beg, rob, do anything, but I won't support you. My innings are over. पीछे 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 क्या लगना? कोई लिमिट है क्या? And still nobody will be happy with you. बहुत क्वेश्चन, बहुत
बात करना, हो गया, आपने बहुत बात किया, सब कुछ दे दिया। जरा जस्ट थिंक ऑफ द स्क्रिप्चर, थिंक ऑफ द सत्संग, कम इन द इवनिंग क्लास, शाम की क्लास में आइए, गीता सुनिए, रामायण सुनिए। देयर इज समथिंग बिगर देन दैट। कब तक बेबी फूड पे चलेगा? आगे बढ़ना चाहिए ना। अब हो गया 60 हो गया, 55 हो गया, यू हैव लास्ट 15 ईयर ऑफ योर लाइफ, लास्ट 10 ईयर, एटलीस्ट मेक द नेक्स्ट बर्थ इफ यू कैन नॉट बी आउट ऑफ द, अच्छा जन्म मिले कम से कम। इसलिए हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम हुआ करता। हमें आज ही से तैयार करना है, उस समय तक हम नहीं, आई एम नॉट गोइंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, then you cannot do it. You have to prepare for something. You have to prepare for a mind. और सबको पता होना चाहिए कि this person will be like that. आप भागवत पढ़िए, पृथु हुए, राजा भरत हुए, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े राजा थे. They left their place. I'm not saying you leave your house. I'm saying inside your house also, give more time to your sadhana. And if you can have some ashram, etc., where you have lot of faith, तब तो क्या कहना, तब तो बहुत लकी हैं आप. इसलिए दूर पता लगना चाहिए हमें करना क्या है. हम what state of mind I want, हमें मन कैसा मन चाहिए, फिर डिसाइड करेंगे कैसा कर्म करना है. एक्शन इज अ दवाई, इज अ मेडिसिन. It should treat away the problem of vasanas, demands, reaction, anger, frustration. It should be treating agent. The action is not to create more desire. कि आपके पास और इच्छा हो गई, और डिमांड हो गई. एक्शन इसलिए नहीं है कि हम पहले से और हम डिमांडिंग हो गए और गुस्से वाले हो गए. जनरली यही होता है. Most of the people, as they grow old, they become more addict of attention, more complaining in nature. क्योंकि तैयार नहीं किया था. और हर ओल्ड पर्सन को सिस्टम सॉलिट्यूड में भेज देता है. You need not go in solitude. You go see all old people. They will be pushed into solitude. क्योंकि कोई है नहीं आपके आसपास. आप अकेले रहिए. अकेले रहिए या एकांत में रहिए, दोनों में अंतर है. Gurudev used to say, either you are lonely or aloneliness. So don't go for loneliness. I am now, loneliness is there. Loneliness is there where I have vasana but I can't fulfill. I am missing. Aloneliness is there where I have silence and I want outer silence to support my sadhana. इसके लिए बात में नहीं तैयारी होती. जब आग लग जाती है तो कुआं नहीं खोदा जाता. पहले से कुआं खोद के तैयार रखना पड़ता है. पता नहीं कब आग लग जाए. आप हैव टू प्रिपेयर वेल. जिस दिन एग्जामिनेशन होता है उस दिन तैयारी नहीं होती. अच्छे स्टूडेंट पहले से ही तैयार करके रखे रहते. एग्जाम डे को रिवाइज कर लेते हैं सारा. लाइफ ऐसी होनी चाहिए. अंत काले परम नाभ, अंते नारायण स्मृति. जीवन लाभ सबसे बड़ा यही है कि अंत में भगवान का नाम आए. लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ती. अब आज फंक्शन हुआ ये या भजन, उसके लिए तैयारी क्या होगा. इन्होंने कई दिन से सोचा होगा, है कि नहीं. ये थोड़ी ना कि आज सुबह से तैयारी हो गई. 10-15 दिन पहले डिज़ाइन किया होगा, कॉन्टैक्ट किया होगा, आर्टिस्ट को बुलाया होगा, माइक वाले को बुलाया होगा, लंच भी प्रिपेयर होगा, है ना. मेनू सोचा होगा. ये देखिए प्रसाद सोचा है. ये देखिए क्या बढ़िया प्रसाद है. इसकी सुगंध आ रही होगी शायद, हमको तो आ रही है. हाँ, ये प्रसाद सोचा होगा. हमारा भी सोचा होगा क्या लंच है ना. हाँ. तब जाके लगता है कि इट वॉज वेल थॉट ऑफ. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इट वॉज हश हश.
कि झट मंगनी पट ब्याह और खट तलाक, वो नहीं होगा। ये नहीं होगा झटपट। पहले से हमें अपने मन को आगे के लिए 2034 में हाउ डू यू वांट टू सी योरसेल्फ? कैसा मन चाहते हैं आप? कैसा आप उस समय एटीट्यूड चाहते हैं? कितना जप आप चाहते हैं? कितनी पूजा चाहते हैं? कितनी शांति चाहते हैं? उसके हिसाब से आज का दिन डिसाइड होगा। ये नहीं कि जो आ रहा है बस करते चले जा रहे हैं। वो तो गाय भैंस का जीवन हुआ, जैसे सामने जो आया उस बस खाते चले जा रही है ऐसे। देखा होगा ना गाय वाय को आपने, हाँ, जहां मौका लगा वहां बैठ गई, ट्रैफिक के बीच में बैठ गई और आप हॉर्न बजाओ, हाँ ऐसे करेगी, इसका मतलब उधर से चले जाओ। ये सब इंडिया में ही पॉसिबल है। हम सिंगापुर में रहे, कोई घास गाय नहीं मिल रही थी, एक गाय नहीं सड़क पे, एक बकरी गाय कुछ था ही नहीं सड़क पे, इतना बोरिंग था। कुवैत में भी नहीं मिलेगी गाय सड़क पर, अमेरिका में भी नहीं मिलेगी, क्या फायदा जाने से। यहाँ गाय है, सड़क में कोई उसको रोटी खिला रहा है, इन्हीं के बगल में ले जाए। पशु की उत्पत्ति संस्कृत में है पश्यति इति पशु, जो केवल देखे, जो देखे अभी अभी बस लिख जी रहे हैं। लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए ऐसा। तब आज का दिन हम डिसाइड करेंगे कि कैसा होता है। अब हम यहां आए, हमको पता है कितने बजे तक हमें पहुंच जाना है वापस। आज कितने बजे में निकलना है शाम को। ऑलरेडी दैट पिक्चर इज इन माई माइंड। दिन भर का रूटीन तय हो गया, बल्कि महीनों का तय हो गया है ऑलरेडी। ऑलमोस्ट होल ईयर का ही तय हो गया कि कहाँ कब जाना है। तो प्लीज थिंक फार, बी अ विजनरी इन योर लाइफ अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। डोंट बी सेटिस्फाइड विद समथिंग वेरी स्मॉल। आज गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन गुस्सा हमारा नहीं आएगा, हम कॉन्कर कर लेंगे उसको। आज हम अटैच्ड हैं, कोई बात नहीं, हमारा अटैचमेंट चला जाएगा। नेवर लूज होप and heart. You will get over it, but you have to work for it. To fulfill your dream, you have to be awake. चलिए, ये कृष्ण ये रहा तभी से। इसीलिए धर्म ते विरति, अपने अपने स्वधर्म करो। स्वधर्म मतलब 3 चीज। आसपास जो भी लोग हम जितना उनके लिए कर सकते थे एज अ फादर मदर चाइल्ड, परफॉर्म दैट ड्यूटी and ask for devotion. Not that other person will understand that I have done it, therefore you should respond. People don't understand. Most of the people are unsatisfiable. वो खुश नहीं होते। जितना भी आप कर लो बोलेंगे आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। घर में रहोगे तो बोलेंगे तुम हर समय घर ही में रहते हो, बाहर जाओ, कुछ सत्संग वगैरह किया करो। सत्संग में जाओगे बोलेंगे तुम इतना सत्संग करे हो, तुम स्वामी जी को नहीं बन जाते हैं। हर समय तुम बाहर ही रहते हो। हम इतना थोड़ी ना बोलते बाहर जाने के लिए। आपको अपने मन को देखना पड़ेगा, हमें कहाँ फुलफिलमेंट है। अभी से आप धर्म करिए सबके प्रति, सबसे आशीर्वाद लीजिए, सबके अंतर्यामी से। नंबर 2, एवरी डे एलोकेट सम टाइम फॉर योर उपासना, भगवान की पूजा जब करिए, हाफ एन आवर 1 आवर। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोज सत्संग सुनिए, सत्संग सुनिए। Hear to something good that will make your day. One satsang a day keeps all the sorrows away. आपको लगेगा दिन बन गया आज का, मिल गया जो आज जिसके लिए आज हमारा दिन था। एक अच्छा सत्संग एक दिन में मिल जाए तो लगता है कि मजा आ गया आज। ठीक है, अभी से ऐसा प्लान करके संतों के पास जाके प्लीज सी मच अहेड ऑफ the family life, of a social life, of our own
Professional life also. There is some higher skies and space where the bird is meant to fly higher. You will never be satisfied in a cage. Bird को केज में मजा नहीं आएगा. Bird is meant to go very high. आपको संतोष नहीं होगा. जानते सीकर कब बनता है? उसको कुछ बड़ा सुख चाहिए, बड़ा संतोष चाहिए. वो लॉलीपॉप से नहीं खुश होता. कि डांस करने गए बारात में, नाच ली, थोड़ा सा हिला लिया हाथ पैर, कमर हिला लिए, हाँ, और इतनी बड़ी प्लेट में आपने डिनर ले लिया. बुफे सिस्टम है ना, वो बफेलो सिस्टम है. क्योंकि आपने लिया, आपको दही भी डाल लिया, गुलाब जामुन भी डाल लिया, सब कुछ डाला, और आपको लगा गुलाब जामुन ले ले, वो था दही बड़ा. क्योंकि उसके ऊपर दही लग गई थी, हमको लगा दही पहाड़. इतना कंफ्यूजन है. लगा रोटी लिया, नहीं पता लगा रोटी नीचे चली गई थी, बेचारी भीग गई थी. वेजिटेबल के ग्रेवी में रोटी तरबतर हो गई. 12 बज गया एक प्लेट के लिए. 7 बजे निकले थे. पहले तो मेकअप करने में आधा घंटा लगा, चेहरा ऐसा है. तो उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंचे. सब लोग हग वगैरह किया, स्टनिंग स्टनिंग ये सब सुना हमने. हाँ, और स्टनिंग, यू लुकिंग स्टनिंग, ये सब सुना. फिर बाल वाल ऐसे किया, शर्ट टाई ऐसे किया. फिर 11:30 बजे खाना सर्व हुआ. फिर लड़के को लिफाफा दिया, एक एनवलप दिया. फिर हमने रात में 12 बजे ऑयल से भरा हुआ खाना खाया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है रात में इतना देर खाना. फिर घर आके इनो लिया. वहां तो 4-4 5-5 घंटा लगा दिया, फूक दिया. यहां भजन करने में नानी मरती 1 घंटे. टाइम नहीं है पूजा का, टाइम नहीं है भजन, टाइम नहीं है सत्संग का. आप जाइए 1 घंटे में. 60 के बाद कम बैक फास्ट. 65-70 के बाद नहीं जाना है. एज सिंपल एज दिस. हो गया, आप काफी शादी में हो आए. बच्चों के हाथ लिफाफा बेच के वापस आ जाइए, या 10 मिनट में आ जाइए. एक रोल था ना, वो पूरा हो गया. हम बहुत शादी में हम नहीं जा सकते. मेरा आशीर्वाद है आपके साथ. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, गॉड ब्लेस यू. आप बोल दीजिए, एक मेल लिख दीजिए, वही मेल सबको भेज दीजिए. लेकिन फोकस होना चाहिए वहां पे. देखो कितने महात्माओं को हम देखते हैं ना, अच्छा लगता है. ये नीम करौली बाबा, उनका एक कैंची धाम है नैनीताल के पास. ये चेक वाला, वहां भी अभी भी कंबल देते हैं, ऑफर करते हैं, चेक वाला कंबल पहनते. जानते क्या साधना थी इनकी? राम 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 राम. कभी हमको लगता है कि हम हर महात्मा पे थोड़ी देर एक दिन दें, ऐसा उनके बारे में डिटेल से बताएं, कैसे स्टार्ट हुई थी उनकी. कुछ सीखे ना. हम ये नहीं कहते फैमिली के साथ समय नहीं देना चाहिए. आप दीजिए फॉर अ डेफिनेट टाइम. डोंट कीप एनीथिंग ओपन एंडेड. एंड प्लीज आस्क डिवोशन ऑफ गॉड फ्रॉम दैट. Don't ask satisfaction of the person, they will not be satisfied. हम नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ के तैयारी करने में कितना टाइम लगा हो, वो आप ही को पता है. और आपको नहीं समझ में आएगा कि हमें आने में भी एफर्ट लगता है. हमें रात में नींद नहीं आई, टाइम लगता है. कोई आपको नहीं समझेगा, भगवान ही समझेगा. बस उन्हीं को आप प्रसन्न करिए. दिन रात उन्हीं के बारे में सोचिए.
आप गीता पढ़ेंगे, आज तो देखेंगे, कल आएगा, कल आया था, आज तो शुरुआत होगी। कैसा मन होना चाहिए, कैसी बुद्धि होनी चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए। रोज गीता का एक चैप्टर पढ़िए, एक चैप्टर कंपल्सरी। रामायण का एक पेज पढ़िए कंपल्सरी। सुंदरकांड हो तो सुंदरकांड 10-5 दोहा पढ़िए। मेक अ शेड्यूल, उसको करे बिना नहीं खाना खाना है। रोज कोई सत्संग सुनिए। लाइफ बहुत जल्दी बीत जाएगी। टाइम इज जस्ट रनिंग अवे। 2025 आ गया, विश्वास नहीं होता किया। एक दिन सोचे कि हमें मैंगलोर आना है, याद है, मैंगलोर इनवाइट किया। हमें कहा अच्छा कब आए देखते हैं, फिर पक्का हुआ, फिर एक शुरू हो गया। अभी आपको 2 दिन बाद लगेगा अरे पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। लेट्स यूज द बेस्ट। भगवान से भरिए। हर मोमेंट एक कप है, उसमें आप तपस्या भर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन भर सकते हैं, एंगर भर सकते हैं, पैशन भर सकते हैं, ईश्वर भर सकते हैं। ऐसा भरिए कि आप उसको कंज्यूम कर सकें। आप जब पीछे मुड़ के देखिए कि आज का दिन बहुत अच्छा था, हमारे इंटरेक्शन बहुत अच्छे थे, सारे कप। कोई अच्छी पेंटिंग बनाता है ना, बार बार उसको देखता रहता है और खुश होता रहता है। हर कर्म एक पेंटिंग है, हर संपर्क एक पेंटिंग है। जब आप पीछे मुड़ के देखिए, हमने उनसे अच्छा बोला था, उनसे अच्छी व्यवहार किया था, अच्छा सुना कुछ, आज हमने ये पूरा कर लिया, आज हमारा मन अच्छा था, आज गुस्सा नहीं आया हमको, आज टाइम नहीं वेस्ट किया। फिल एवरी मोमेंट। वो फिर नहीं मिलेगा कप। सारा कप आप ही को ड्रिंक करना पड़ेगा। आपने डिस्पैशन से फिल किया, डिस्पैशन ही आपके पास आएगा। एंगर से फिल किया, एंगर ही आपको लेना पड़ेगा। दैट्स इट। हम बोलते चले जा रहे हैं। हमें शाम के लिए जाना है। अब आप लोग को उषा नाम है, हाँ, उषा राव। अच्छा उषा राव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सबको बुलाने का एक अलग आनंद होता है। इस दुनिया में हमने देखा, अलग करने वाले लोग बहुत होते हैं, साथ लाने वाले लोग कम होते हैं। आप सबको साथ लाई और भी अभंग हुआ इतना अच्छा। हमने तो 1-2 सुना, बहुत अच्छा लगा, वेरी ब्यूटीफुल। जिनको मराठी पता है वो तो और एंजॉय करेंगे। कोई है मराठी? अच्छा ये तो हैं, आप समझ जाते हैं। अच्छा चांगला है भाव, हाँ, खूब खूब चांगला है। जी No, first is that, see, ऐसा नहीं है कि good people get bad thing. There is nobody in this world who gets only good thing. And there is nobody who gets only bad thing. ऐसा नहीं good people get bad thing. Otherwise we won't be sitting here. Or I will get only bad things. And if I have not got bad thing, that is I am not good. ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं है। हर आदमी को मिक्स्ड फ्रूट मिलता है। किसी किसी को ज़्यादा बैड फ्रूट मिल सकता है, कम गुड मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो गुड है तो उसको बैड ही बैड मिलेगा। भगवान है, उसको जस्ट वेट फॉर द टाइम टू पास आउट। सुदामा गरीब थे लेकिन जिंदगी भर गरीब नहीं थे। उनको भगवान मिले, उनको भी पैलेस मिल गया। पांडव 80 साल तक घूमते रहे वन, इतने गुड थे, लेकिन बाद में भगवान ने उनको राज दिया। ऐसा नहीं है। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। एंड रियल गुडनेस इज नॉट दैट आई गॉट बैड थिंग्स, आई कन्वर्ट द आउटर बैडनेस इनटू इनर गुडनेस। आई गॉट अब्यूजेस, हमने मन में उसको प्रसाद मान लिया, हमने इसको एक्सरसाइज मान लिया। Swami Vivekananda used to say this world is a gymnasium
where you have come to make yourself stronger. देखते हैं कितना हमारा ईगो है. Let us see. ऐसा नहीं है. कोई अच्छा कर रहा है, भगवान उसको देते हैं ठीक ठाक. भले जितना खराब कर्म पहले का हो, लेकिन उसका भी एग्जॉस्ट होता है. उसके जीवन में एक अच्छी चीज देते हैं, एक अच्छा आदमी देते हैं. कुछ सिल्वर लाइनिंग होगी. सब कुछ खराब होने पे भी एक अच्छा ही होगी. जिसको सोच के ही कैन बी हैप्पी. ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में सब कुछ खराब है, और ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है. भगवान राम के पास भी जब सीता जी थी तो राज नहीं था, जब राज आए तो सीता जी नहीं थी. कृष्ण जी के पास भी जब यशोदा जी थी तो देवकी नहीं थी, जब देवकी मिली तो यशोदा जी नहीं रही. He couldn't enjoy both together. हमारे दोनों हाथ में लड्डू हर समय नहीं रह सकता. एक में लड्डू रहेगा और कहीं ना कहीं से कुछ करेला भी आएगा. जस्ट एंजॉय दैट करेला. इट्स माई स्पिरिचुअल है. दुख वैराग के लिए है, सुख सेवा के लिए. दुख से पता चलता है कि दुनिया ने, देखो जिसके लिए हम करें उसने किस तरह से सब छोड़ देते हैं. यहाँ पे कोई अपना नहीं है. और सुख ज़्यादा है इसलिए है कि हमारे पास चलो दूसरे को देते हैं, कृतज्ञता के लिए. ऐसा हो ही नहीं सकता किसी के पास केवल ही खराब. क्या अच्छा, क्वांटिटी ज़्यादा कम हो सकती है. बहुत से कर्म है. रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, रमन महर्षि की फोटो, इनको भी यहाँ पे कैंसर हो गया. इसलिए जो बुरा भी आए उससे भी हम अच्छा भाव निकाल लेंगे, साधना बनाएंगे, विश्वास बनाएंगे, वैराग बनाएंगे, विवेक बनाएंगे, हम ग्रो कर जाएंगे. अगर हम कहीं से परेशान हैं मतलब हमारा अटैचमेंट ज़्यादा है, अहंकार ज़्यादा है. कोई भी इशू परेशान तभी करता है जब हमारे अंदर अटैचमेंट होता है. हम कहीं ऑब्सेशन में हैं, कहीं अहंकार ज़्यादा आ रहा है. हमें ग्रो करना है उस इशू से, उस पर्सन से. कोई आदमी परेशान नहीं करता, उसके लिए हमारी एक अपेक्षा से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. हम उसको एक बॉक्स में रख रहे हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं. Let us break the box. Let us see in the eyes of the God. There is something more in that person. परेशान मत होइए किसी सिचुएशन से. वो एक कड़वी दवा है, जरूरी है हमारे लिए. काढ़ा होता है, आयुर्वेद में काढ़ा होता है, हम रोज लेते हैं उसको. हाँ, आंख बंद करके लेते हैं. आपने भी लिया होगा कुछ काढ़ा वगैरह पहले. अच्छा वेलकम ड्रिंक काढ़ा था. आप आयुर्वेद वाले हैं क्या? अरे हमारे वाले में कोई जैगरी वगैरह नहीं रहती. पहले देखते हम उसको ऐसे ऐसे ही ग्लास में रहता है. ये भी काढ़ा है क्या? हमारा भी ऐसे ही ग्लास में, हम ऐसे उसको देखते हैं, फिर आंख बंद करके भगवान का नाम लेके ले लेते हैं, और उससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है. क्वेश्चन ये नहीं है कि अच्छे लोग मिले, बुरे लोग मिले. क्वेश्चन है हमारा गुस्सा कम हुआ. क्वेश्चन है भगवान की याद आई क्या. क्वेश्चन है कि हमारे अंदर वैराग आया क्या. क्वेश्चन है कि हम समझ पाए कुछ बड़ी चीज. what this person taught me really. भगवान से कुछ मैसेज दिख रहा है. कोई बात नहीं, कोई ऑपरेशन होता है, दर्द होता है, लेकिन रिकवरी हुई कुछ. ऑपरेशन के बाद लोग पूछते हैं आपको अब आराम मालूम पड़ रहा है? पहले एक हफ्ते बहुत पेन था. चलिए आप शाम को आइएगा प्रवचन में. 5:30 to 7 o'clock है. व्हाट इज द प्लेस? हाँ, कुमार धाम, जो भी हो. तो आप वहाँ आइएगा. और मॉर्निंग में भी टॉक है 8 to 9:15. आप लोग आइएगा, कुछ सुनिए, कुछ देखिए क्या है स्क्रिप्चर्स में, एक अलग अलग एंगल से हैं. एंड यू विल डेफिनेटली रियलिश देयर इज समथिंग फॉर यू. ऐसे टाइम को फेंकना नहीं चाहिए, बहुत कीमती है. जैसे आप पैसा नहीं फेंकते कि चल रहे हैं ऐसे पैसा फेंक दिया. कितने भी आप अमीर हो, ऐसे नहीं कि पैसा फेंकते फेंकते जाएं. उसी तरह से टाइम इज मिलियन टाइम कॉस्टली एंड इम्पॉर्टेंट देन द मनी ऑल्सो. ठीक है. हरिओम. थैंक यू ऑल वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद.